السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر 15۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں اللہ کو یاد کرتا آہستہ آہستہ قدم دیکھ دیکھ کر رکھتا ہڈیوں کے اس دیش سے گزر گیا۔ خاصا آگے جا کر میں رک گیا۔ وہ جگہ اس زمین سے ذرا اونچی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا، سورج اس خطے پر اپنی دھوپ بکھیر چکا تھا۔ سبز گھاس میں سفید ہڈیاں، پنجر اور کھوپڑیاں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے معلوم نہیں کس جذبے کے تحت اونچی آواز میں کہا، میرے دوستو، میرے ہم وطنوں، خدا حافظ۔ میں آگے کو چل پڑا۔ اب تو بھوک نے کچھ اور ہی رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں برداشت کرتا رہا۔ 1.5-2 گھنٹے چلتا رہا اور ایک ایسے خطے میں پہنچ گیا جہاں کچھ اور ہی قسم کے درخت تھے اور وہاں جھاڑیاں بھی تھیں۔ یہ میرے علاقے کے جھاڑی بیر معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ایک بیر توڑا اور ڈرتے ڈرتے منہ میں ڈالا۔ اس کا ذائقہ بیروں جیسا ہی تھا۔ اس کا سائز چنے کے دانے جتنا بڑا تھا اور کچھ اس سے ذرا بڑے تھے۔ میں نے یہ بیر توڑ توڑ کر کھانے شروع کر دیے۔ یہ پھل جو کچھ بھی تھا زہریلا بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے ان سے پیٹ بھرنا شروع کر دیا اور سوچا کہ اگر یہ زہری ہے تو یہی ہوگا کہ مر جاؤں گا۔ میں موت کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کرنے کو تیار تھا۔ ایک ہی خیال دماغ میں سما گیا تھا کہ اب انگریز کی غلامی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں یہ بیر کھاتا رہا۔ ذائقہ اچھا تھا اور پھر میں آگے چل پڑا۔ جسم میں کچھ جان آ گئی تھی۔ کچھ اور آگے گیا تو 4-5 بڑے درخت دیکھے۔ ان کے ساتھ ہی انجیر کی قسم کا پھل لگا ہوا تھا۔ اونچا تھا اس لیے میں شاخوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ درخت پر چڑھنے کے لیے بوٹ اتارنے پڑتے تھے۔ میں نے 3-4 پتھر مارے تو پھل جو کچھ بھی تھا اس کے چند ایک دانے گرے۔ میں نے ایک دانہ اٹھا کر تھوڑا سا منہ میں ڈالا۔ ذائقہ اس کا بھی ٹھیک لگا۔ ذائقہ انجیر جیسا بھی تھا، میٹھا تھا، لیکن یہ پھل کچھ اور تھا۔ جو کچھ بھی تھا میں نے پتھر مار مار کے یہ پھل خاصا گرا لیا اور وہیں بیٹھ کر اس سے پیٹ میں گنجائش اگر جھاڑی بیروں جو چھوڑی تھی وہ پور کر لی۔ میں یہ سفر ذرا مختصر کر کے سناؤں گا کیونکہ یہ میری داستان کا ایسا حصہ ہے جس میں پڑھنے والوں کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ میں ایک عجیب و غریب واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو اس سفر کے تیسرے یا غالباً چوتھے روز پیش آیا تھا۔ میں میدان جنگ سے دور نکل گیا تھا۔ یہ اندازہ اس طرح ہوتا تھا کہ توپ خانے کے دھماکے، مشین گنوں اور رائفلوں کی فائر کی آوازیں متم ہو گئی تھی۔ میں نے وہ دن چلتے ہی گزارا اور رات آ گئی۔ ایک ذرا اچھی جگہ دیکھ کر میں لیٹا اور سو گیا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ اگلے روز میں پھر پہاڑی علاقے میں پھنس گیا۔ 2 ندیاں پار کرنی پڑیں اور پھر مجھے جھاڑی بیر مل گئے جن سے میں نے پیٹ کی آگ بجھا لی۔ پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اچھی طرح بتا نہیں سکتا کہ میرے سفر کا تیسرا دن تھا یا چوتھا دن۔ وقت 12 بجے کے لگ بھگ تھا۔ اس علاقے میں اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں۔ پہاڑیاں ذرا پیچھے رہ گئی تھیں۔ جھاڑی اور گھاس تھی جو ذرا اونچی تھی۔ اس علاقے میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں چلا جا رہا تھا، اپنے پیچھے اس طرح آوازیں اٹھی جیسے کتے غرا رہے ہوں۔ میں نے گھوم کے دیکھا وہ بھیڑیے تھے۔ بھیڑیا اکیلا نہیں ہوتا، یہ درندہ گروہوں کی صورت میں شکار کرتا اور گھومتا پھرتا رہتا ہے اور شکار پر گروہ کی صورت میں حملہ کرتا ہے۔ ان درندوں کا اندازہ دیکھو تو میں سمجھ گیا مجھ پر حملہ کریں گے۔ وہ دانت نکال کر آہستہ آہستہ غرا رہے تھے اور دائیں بائیں اس طرح پھیلتے جا رہے تھے جیسے مجھے محاصرے میں لے رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ میری طرف بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ میں نے رائفل کندھے سے لگا لی۔ میگزین میں 10 راؤنڈ موجود تھے۔ میں نے بولٹ پیچھے کھینچ کر آگے کیا اور ایک راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ نیلنگ پوزیشن میں بیٹھ کر یعنی ایک گھٹنا زمین پر لیٹ ٹکا لیا اور دوسرے گھٹنے کو کونے رکھ کر رائفل کندھے سے لگا لی۔ ایک بھیڑیے کو شست میرے اور ٹریگر دبا دیا۔ وہ بھیڑیا بڑے زور سے بھونک کر اوپر کو اچھلا اور گر پڑا، پھر فوراً اٹھا اور پیچھے کو چلا۔ میں نے بڑی تیز سے بولٹ پیچھے کر کے ایک اور راؤنڈ چیمبر میں دھکیل کر ایک اور بھیڑیے کو شست میں لیا۔ پہلے دھماکے سے بھیڑیے چکنے ہو کر پیچھے ہٹے تھے۔ جب میں نے دوسرا راؤنڈ فائر کر کے ایک اور بھیڑیے کو گرایا تو باقی بھیڑیے اس طرح بھاگے جس طرح میری رائفل سے گولی نکلی تھی۔ وہ 2 بھیڑیے اچھلتے کودتے رہے اور ایسے گرے کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ اب تو میں اور زیادہ چکنا ہو گیا تھا۔ مجھے خیال بھی آیا کہ جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے وہاں کے تمام درندے بھاگ کر ادھر ادھر آگے ہوں گے۔ یہ میرے لیے کھولنا خطرہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کو مجھے چکنا رہنا پڑے گا۔ میں آگے کو چل پڑا۔ شاید ایک اور رات آئی تھی۔ اگلے روز سمجھ لیں، شاید اس سے اگلے روز کے میں ایک اور علاقے میں جا رہا تھا۔ وہ علاقہ بھی اسی جیسا تھا اور پرسکون تھا۔ پرسکون کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی اور نہ کوئی ایسے آثار تھے کہ یہاں کبھی لڑائی ہوئی تھی۔ البتہ جنگ کے آثار صرف یہ نظر آتے تھے کہ چند ہوائی جہاز اوپر سے گزر جاتے تھے۔ یہ جاپانیوں کے لڑاکا بمبار جہاز تھے۔ میں ان جہازوں کو پہچانتا نہیں تھا۔ انہیں میں اس لیے صرف جاپانی کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری طرف سے آئے تھے۔ مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں صبح اٹھ کر آگے کو چل پڑا اور خاصا آگے نکل گیا تھا۔ ایک ٹیکری گھما تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت نہیں بلکہ خواب ہے یا خیال ہے۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ پیٹھ لگا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔
वो मुझसे 15-20 कदम दूर था। मैं इसे देखकर रुक गया। इसकी आंखें बंद थीं। पहले तो मैं समझा कि वो जिंदा नहीं, लेकिन इसकी आंखें आहिस्ते आहिस्ते खुल रही थी। इसे शायद मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो बर्मी नहीं था। बर्मियों की शक्ल व शुबहात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपने चीनी और जापानी देखे होंगे। बर्मियों के चेहरे इनसे मिलते जुलते हैं। ये आदमी हिंदुस्तान के किसी इलाके का मालूम होता था। वो यकीनन फौजी था, क्योंकि उसने खाकी पतलून और खाकी बुशर्ट भी पहनी हुई थी, लेकिन इसके पाँव में फौजी बूट नहीं थे। वो लाश लगता था। इसके चेहरे की हड्डियां नजर आ रही थी। इसे मैं अपने जैसा फौजी समझा जो जंग से भगोड़ा होकर आया और रास्ता भूल गया हो। बहरहाल वो हिंदुस्तानी था। मैं इसके करीब चला गया। इसने बैठने का इशारा किया। मैं इसके पास बैठ गया। उसके करीब बैठा तो देखा इसके पीछे रुमाल की तरह के कपड़ा बंधा हुआ है, जिसमें वही या इसी किस्म के पहाड़ी बेर या फल थे जिसे मैं अंजीर कहा था। मैं समझ गया ये शख्स इसी फल पर अब तक जिंदा है। इसकी हालत बता रही थी कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा। बोल सकते हो? मेरी जुबान समझते हो? उसने सर हिलाया, यानी वो बोल भी सकता है और मेरी जुबान भी समझता है। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। इसने अमृतसर का नाम लिया। फिर इसने मेरी वाटर बोतल की तरफ इशारा किया। मैंने अपनी पानी की बोतल निकालकर इसका काक निकाला और बोतल इसके हाथों में दे दी। इसने कमोबेश आधी बोतल पानी पी लिया और मुझे दे दी। इसने सुकून का लंबा सांस लिया। फिर वो बोलने लगा। अब कुछ देर और जिंदा रह सकूंगा, उसने पंजाबी में कहा। उसकी आवाज़ मध्यम और कमज़ोर थी और बोलने में कुछ दिक्कत महसूस कर रहा था। उसने कहा, बस पानी की ज़रूरत थी, अब चला नहीं जाता। उसने अपनी दाई टांग जो इसने आगे को कर रखी थी पतलून ऊपर घुंडे तक खींची। जब मैंने इसकी पिंडली देखी तो तब मुझे पता चला कि इस शख्स से इतनी बदबू क्यों आ रही है। इसकी पिंडली सूजी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि इसकी रान से पिंडली ज़्यादा मोटी हो गई थी। पिंडली सिर्फ सूजी हुई नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसा जख्म कि पूरी की पूरी पिंडली का गोश्त नंगा हो गया था और इसमें पीप पड़ी हुई थी, और शायद मैंने इस पर छोटे छोटे कीड़े रेंगते हुए भी देखे थे। इसने मुझे दिखाकर पतलून फिर नीचे कर दी। मैंने इससे पूछा कि ये क्या हुआ है। अब वो बोला तो इसकी आवाज़ पहले की निस्बत अच्छी खासी जानदार थी। वो मुझे आवाज़ में बोल सकता था। मेरे दोस्त, इसने कहा, मुझे मालूम होता है तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो जो मेरे पास पहुंच गए हो। मैं देख रहा हूँ तुम हिंदुस्तानी फौज के हवालदार हो। अब मुझे यही तवक्को थी कि ये कहेगा कि मुझे अपने कंधों पर उठा लो और ऐसी जगह ले चलो जहाँ मेरी मरहम पट्टी हो जाए और मैं जिंदा रह सकूँ। मैंने सोचा कि मैं इसे साफ साफ बता दूंगा कि मुझे खुद भी इल्म नहीं कि मैं कहाँ हूँ। देखो मेरे दोस्त, वो कह रहा था, तुम्हारे पास राइफल भी है, एमुनेशन भी है, सिर्फ एक गोली की ज़रूरत है। खुदा के वास्ते मेरे सर में गोली मार दो और मुझे इस अजियत से बचा लो। मैंने मरना ही है, लेकिन मौत की अजियत बढ़ती जा रही है और मौत आती नहीं। मुझे मौत दे दो और ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। नहीं मेरे भाई, मैंने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। ये बताओ कि तुम फौजी हो, सिविलियन और जो कुछ भी हो, यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। इसे लंबी आह भरी और उसके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें खुशी या मुसरत की ज़रा सी भी झलक नहीं थी, बल्कि इसमें उदासी थी, शिकस्त थी और गालिबन इसमें तंज भी था। हाँ, उसने कहा, तुमने ठीक पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ तक किस तरह पहुँचा हूँ। मुझे यह कहानी तुम्हारे सुपुर्द कर देनी चाहिए मेरे भाई। मेरे इस कहानी को तुम अमानत समझना और कभी अपने वतन को वापस चले गए तो ये लोगों को सुनाना। इस कहानी में इबरत है। मैं तालीम याफ्ता आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि लोगों को कुरान और हदीसें सुनाओ, तुम कुछ नहीं समझेंगे। तुम इन्हें मेरी कहानी सुनाओगे तो समझ जाएंगे, और हो सकता है कि इससे कोई शख्स सबक हासिल कर ले और राह रास्त पर आ जाए। कोई बात गलत या झूठ नहीं कहूँगा। मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करना चाहता हूँ। हो सकता है अल्लाह की ज़ात जो गुनाह बख्शने वाली है, मरते वक्त ही मेरे गुनाह बख्श दे और मैं अगले जहान की अजियत से बच जाऊँ। मेरे दोस्त, जो अजियत मैंने इस दुनिया में देख ली है, जहन्नुम की अजियत और क्या होगी। इसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की तो मैंने देखा कि इसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा जान और पुख्तगी आती चली गई थी। शायद एक बार जुर्म कर लेने का सुकून था। इसके ज़मीर का बोझ उतरता चला गया और वो कुछ इत्मीनान सा महसूस करने लगा। फिर इसकी ये कहानी मैं अपने अल्फाज में सुनाऊंगा। कई बरसों से हकायत बाकायदगी से पढ़ रहा हूँ। मैंने हकायत में इसी पस मंज़र में गालिबन 3-4 या सच्ची कहानियाँ पढ़ी हैं। इन कहानियों के किरदार बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून में थे और वहाँ से हिंदुस्तान को रवाना हुए थे। थोड़े अरसा पहले इसी पस मंज़र में हकायत में एक और सच्ची कहानी पढ़ी है। चूँकि मैं इस पस मंज़र में रहा हूँ और इसका मैं आईनी शाहिद हूँ, इसलिए पूरे यकीन के साथ कहता हूँ ये कहानियाँ सूफी से सच्ची हैं। इसकी कहानी भी कुछ वैसी ही थी, लेकिन आगे चलकर इसके साथ जो वाक़यात पेश आए वो ज़रा मुख्तलिफ है। ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी बहुत सी कहानियाँ बर्मा के जंगलों में गुम हो गई हैं। मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया शहादत नहीं कि मैं आपको यकीन दिला सकूँ कि मैं आपको इस आदमी की कहानी जो सुनाने लगा हूँ ये बिल्कुल सच है। इसमें अजीब चीज़ ये है कि ये शख्स मुझे मिला कैसे और मिला कहाँ। मैं ज़रा इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर दूँ। रंगून बर्मा का दारुल हुकूमत था। बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शहर था।
इस शहर में बुद्ध मत के पैरोकारों के इबादत खाने बने हुए थे जो अब भी हैं। मैं वहाँ गया था। बहुत खूबसूरत इमारतें हैं जो तामीराती आर्ट के बेहतरीन नमूने हैं। वहाँ कुछ गिरजे भी थे और मस्जिदें भी थी। मैंने रंगून तबाही की हालत में देखा था। ये बहुत अरसा पहले की बात है, जब जंग खत्म हो चुकी थी और जापानियों का बेड़ा गर्क हो गया था। तबाही की हालत में भी इस शहर की खूबसूरती साफ नजर आ रही थी। तबाही कुछ यूं थी कि शहर में ट्रामें चलती थी। मैंने 2 ट्रामें देखी जो अपनी पटरियों के करीब उल्टी पड़ी थी। बड़ी खूबसूरत इमारतें बमबारी से खंडर बनी हुई थी। कई सड़कें इसलिए बंद थी कि बमों ने वहाँ बहुत बड़े घड़े बना दिए थे। रेलवे स्टेशन भी खासा खूबसूरत लगता था। इसकी इमारत भी बगैर छत के थी क्योंकि इस पर भी बम गिरे थे। मैंने एक रेलवे इंजन प्लेटफॉर्म पर पहलू के बल पड़ा देखा। मुझे एक अजीब चीज़ नजर आई, वो ये कि बुद्धों के पगोडा यानी इनके इबादत गाहें, गिरजे और मस्जिदें बिल्कुल महफूज थीं, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो आबादी थी, जो कई मंजिला इमारतें थीं, वो बमबारी से खंडर बनी हुई थी। क्या बम फेंकने वाले हवाबाजों ने अच्छी तरह देखभाल कर बमबारी की थी कि कोई इबादत गाह तबाह ना हो, या क्या ये खुदाबंद का करिश्मा था कि किसी इबादत गाह का बाल भी बिका ना हुआ? बहरहाल मैंने अजीब चीज़ें देखी और अल्लाह को याद किया कि तेरी ज़ात हर मौजा कर सकती है। यह बमबारी अंग्रेज़ों ने जवाबी हमले में की थी। हिंदुस्तान की तरह बर्मा पर भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। जापानी फौजियों ने हमला किया तो सिंगापुर, मलाया और तमाम जज़ायर को ख़त्म करती हुई बर्मा आन पहुंची और देखते ही देखते पूरे बर्मा पर कब्जा कर लिया। मालूम हो कि जापानी बमबार तैयारों ने रंगून पर या किसी और शहर पर एक भी बम नहीं गिराया। इनकी फौजें आराम से रंगून में दाखिल हो गई थी। पहले बता चुका हूँ कि जापान के जासूस और एजेंट इन इलाकों में मौजूद थे। उन्होंने जापान की फतह के लिए ज़मीन हमवार कर रखी थी। मालूम हुआ कि बर्मा के लोगों ने जापान की फौज का इस्तकबाल किया था। लोग अंग्रेज़ों से इस कदर मुतनफ़र थे कि उन्होंने जापानियों का खैर मकदम किया। अंग्रेज़ों को शायद बर्मियों पर एतबार था ही नहीं। वहाँ की पुलिस में शायद ही कोई बर्मी होगा। पुलिस की अक्सरियत हिंदुस्तान के लोगों की थी, जिनमें ज़्यादातर पंजाब और सूबा सरहद के लोग थे। ये तो अक्सर सुनने में आता था कि किसी शख्स के मुतालिक पूछा कि वो कहाँ से है, तो जवाब मिला कि वो बर्मा पुलिस में है। बर्मा के लोगों को ये भी कोई अच्छा न लगता था कि इन पर पंजाब और सरहद के जवानों को पुलिस में भर्ती करके इन पर मुसल्लत किया गया था। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं कि बर्मा के डाकू मशहूर थे। रंगून शहर के बाज़ारों में अगर किसी बर्मी की कोई दुकान थी तो वो छोटी सी दुकान ही होगी। तमाम कारोबार हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में था। हिंदुस्तान के सूबा मद्रास के लोग भी रंगून में आबाद थे। दरमियाने दर्जे के और बड़े होटल मद्रासी चलाते थे और ये इनकी ही मलकियत थे। जनरल स्टोर, कपड़े का कारोबार और कपड़े की दुकानें हिंदुस्तानियों की मलकियत थी। मुख्तसरन ये समझ लें कि रंगून में हर तरह का कारोबार हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में था। इनमें भी पंजाब के लोग खासी तादाद में थे। तमाम दौलत इन्हीं लोगों के हाथ में थी। ज़ाहिर है कि बर्मियों को ये सूरत अच्छी नहीं लगती थी। ये बुनियादी वजह थी कि गैर बर्मियों को बर्मी अच्छे नजर ने नहीं देखते थे, बल्कि इन्हें भी वो बुरी इसी तरह नापसंद करते थे जिस तरह अंग्रेज़ों को। अचानक बर्मा में खबर पहुंची कि जापान की फौजों ने सिंगापुर और मलाया वगैरह पर यलगार कर दी है। बर्मियों को मौका मिल गया। ये मैं बता चुका कि बर्मा में जापान के जासूसों और एजेंटों ने काम किया था। बर्मियों को तेवर देखकर गैर बर्मी ताजिर, दुकानदार और दूसरे कारोबारी लोग वहाँ से भागने लगे। उन्होंने बेतहाशा दौलत कमाई थी। बड़े बड़े आलीशान मकान भी बनाए थे। मुझे पता चला कि बर्मियों ने इन गैर बर्मी ताजरों वगैरह से कह दिया था कि बेहतर होगा वो यहाँ से निकल जाए, वरना कत्ल कर दिए जाएंगे। इनमें बड़ी प्यारी चीज़ होती है। फिर कौन सा खतरा मोल लेता कि इस छोटे मोटे मासूम और दूध पीते बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। ज़्यादातर फिक्रमंद वो लोग थे जिनके घरों में नौजवान लड़कियाँ थीं। बर्मी कोई शरीफ लोग नहीं थे। जुल्म व तशद्दुद और हक तलफी से तंग आया हुआ आदमी वैसे भी शरीफ नहीं रहता। वो अपनी मजलूमियत का इंतकाम लेता है। बाज़ बर्मी ऐसे थे जिनके गैर बर्मियों के साथ बड़े अच्छे मरासम थे। उन्होंने अपने गैर बर्मी दोस्तों और ताल्लुकदारों को मुखलिसाना मशवरा दिया कि वो यहाँ से निकल जाए, पेशतर इसके कि जापान की फ़ौज यहाँ पहुँच जाए। जापान की फ़ौज के मुतल्लिक एक बात मशहूर हुई थी कि वो ये कि जापानी फ़ौज जहाँ भी जाती और कब्जा करती है, वहाँ से तमाम नौजवान लड़कियों को इकट्ठा करके अपने साथ मोर्चों में रख लेती है। तस्वुर किया जा सकता था कि लड़की को फ़ौज अपने पास क्यों रखते हैं। बर्मियों ने जब जापानी फ़ौजों की शोहरत सुनी तो इनके सामने यह एक रास्ता था कि यहाँ से भाग जाएं। भागने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो समुद्री था और दूसरा रास्ता खुश्की। खुश्की का रास्ता मसदूद था। हकीकत यह है कि खुश्की का कोई रास्ता था ही नहीं। बंदरगाह पर बैरी जहाज़ और लांचें वगैरह मौजूद थीं। रुपये पैसे वाले लोग जो समुद्री रास्ते से निकल सके निकल आए। फिर प्राइवेट बैरी जहाज़रानों ने और लांचों के मालिकों ने किराया इस कदर बढ़ा दिया कि जो कोई अदा ही नहीं कर सकता था। यूँ समझ लें कि बहरी रास्ता भी मसदूद हो गया। ऐसे वाक़यात भी सुनाई दिए कि बहरी जहाज़ों और लांचों में जाने वालों को जहाज़रान रास्ते में लूट लेते और इनकी औरतों को ख़राब करते थे। ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि लोगों ने बिल्कुल इस किस्म की हिजरत शुरू कर दी जिस तरह 1947 में मशरक़ी पंजाब से मुसलमानों ने पाकिस्तान को की थी। कुछ देर दूर तक तो टैक्सी और बसें जाती थी। इससे आगे कोई रास्ता नहीं था। जंगल थे, पहाड़ थे, नक्शे पर देख लें। रंगून से चले तो सबसे करीबी शहर बंगाल का चटाकांग है।
जो वहाँ से 500 मील से ज़्यादा दूर है। यह 500 मील का फासला हवाई सफ़र है। जंगल में दरिंदे मिल सकते हैं, डाकू जापानियों के लड़ाका बमबार हथियारे प्रवास करते हैं और इक्का दुक्का बम फेंकते हैं। उन्होंने सिंगापुर और मलाया को फतह कर लिया था। वो बड़ी तेज़ी से बर्मा की तरफ बढ़ रहे थे। इस सूरत हाल में गैर बर्मियों की बहुत से ज़्यादा तादाद अपने साथ कीमती अशिया बांधकर रंगून से खुश्की के रास्ते चल पड़ी। इनका रास्ते में जो हाल हुआ वो एक लंबी कहानी है। कुछ किस्मत वाले लोग ही बंगाल तक पहुंचे थे। लोग काफिलों की या कई कई खानदानों की सूरत में आए थे। ऐसे भी थे जो तन्हा चल पड़े थे। मौजूदा सदी की एक ऐसी हिजरत थी जिसके मुतालिक हिंदुस्तान में बहुत कम सुना गया था। किसी को तफसील से मालूम नहीं हो सका कि रंगून और बर्मा के दूसरे बड़े शहर मांडले से गैर बर्मी किस तरह निकल आए और उन पर क्या बीती। दूसरी हिजरत मुसलमानों की मशरिकी पंजाब से पाकिस्तान तक थी, जो बड़ी होलनाक और दर्दनाक थी। रंगून से हिंदुस्तानियों की हिजरत ने कई एक इबरतनाक और खौफनाक कहानी को जन्म दिया था, लेकिन ये कहानियाँ कम ही सुनी और सुनाई गईं। मैंने हकायत में इसकी कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं और अब मैं आपको एक और कहानी सुना रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये कहानी अगली किस्त में देखते रहिए प्लान बी। अल्लाह हाफिज़।